Hello students, and how are you? Today I'll take up lesson number 1, Matter in our Surroundings, part 2. Today I'll take up the states of matter. We have observed different types of matters around us. Now what are the different states of matter around us? We find that matter exists in 3 different states: solid, liquid and gas. These states of matter arise due to variation in the characteristics of the particles of matter. Now we have some activities to demonstrate all the 3 states of matter. First of all, let us take activity 1.9 in your textbooks for the solid state. For this, हम लोग को क्या करना है? Let us see the activity here. Collect the following articles: a pen, a book, a needle, and a piece of wooden stick. Sketch the shape of the above articles in your notebook by moving a pencil around them. Do you all these have a definite shape, distinct boundaries, and a fixed volume? What happens if they are hammered, pulled, or dropped? Are they capable of diffusing into each other? Try compressing them by applying force. Are you able to compress them? So these are some questions asked here. So let us look at the observations. Now, what are the observations? All the articles given, जो भी हम लोग को चीज़ें दी गई थी, पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक, हम लोग ने देखा कि all are having definite shape. हर एक बुक का एक प्रॉपर शेप होता है एंड इट हैज डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, उसकी बाउंड्री भी एकदम प्रॉपर होती है और उसका वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स्ड है. नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा? द अबव आर्टिकल्स में ब्रेक अंडर एक्सटर्नल फोर्स. अगर हम लोग इसको ब्रेक करने की कोशिश करें, पेन को जोर जोर से हैमर मारेंगे तो वो टूट जाएगा, नीडल को बहुत जोर से हम लोग हैमर से तोड़ेंगे तो वो टूट सकता है, वुडन स्टिक भी टूट सकती है, बुक भी फट सकती है, एनीथिंग कैन हैपन टू देम. बट क्या हम लोग उसका शेप चेंज कर सकते हैं? क्या उसको अलग शेप में हम लोग उसको बीट कर करके ला सकते हैं? वो बहुत मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट. थर्ड थिंग इज, क्या एक बुक और एक पेन, अगर हम एक बुक और एक पेन को एक दूसरे से मिक्स करने की कोशिश करें, क्या वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे? नो, दे विल नॉट गेट डिफ्यूज्ड. क्या कंप्रेस करके हम लोग पेन छोटा और पतला कर सकते हैं फोर्स लगाकर? क्या बुक के ऊपर फोर्स लगाकर, प्रेशर लगाकर क्या बुक को पतली कर सकते हैं? No, it's not possible. So they are very difficult to compress. It cannot be compressed. So these are all the characteristics of solids. Now for the next state which we have, that is the liquid state. Let us see one activity for the liquid state. Okay, for this what we are going to do? We are going to collect the following things: water, cooking oil, milk, juice and cold drink. Take containers of different shapes and put a 50 ml mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory. What will happen if these liquids are spilt on the floor? Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? Does the shape of the liquid remain the same? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया है? हम लोग ने लिए है लिक्विड चीज़ें लाइक वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क. मिल्क तो आप लोग ने देखा है, डेयरी का मिल्क जो है हम लोग को पैकेट्स में मिलता है, उस पर लिखा होता है 500 ml. ओके, इसका मतलब उसमें कितना मिल्क है? 500 ml मिल्क है. अब हम लोग क्या करेंगे? कोल्ड ड्रिंक भी हम लोग को मिलता है. सो व्हेन यू सी ऑल दिस थिंग्स, उसके ऊपर एक उसका जो वॉल्यूम है, जो मेजरमेंट्स है, वो उसके अंदर उसके लिखे होते हैं, उसके कैन पर या जो भी चीज़ हमारे पास है. अब अगर हम लोग ये लिक्विड्स जो लेकर क्या करेंगे? अगर सबसे पहले अगर हम लोग इसको ये लिक्विड्स को ज़मीन पे गिरा दे तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि वो फ्लो होने लगती है. दे आर एबल टू फ्लो. द लिक्विड्स कैन फ्लो फ्रॉम वन साइड टू another. Then next हम लोग ने क्या देखा? अगर हम लोग 500 ml जो मिल्क के पैकेट में 500 ml मिल्क का पैकेट कट करके हम लोग अलग अलग कंटेनर्स में वो 500 ml मिल्क डालेंगे और हर एक कंटेनर में हम लोग देखेंगे कि पहले से जो कंटेनर्स हमने 50 ml या 500 ml मार्क करके रखे थे
वो मिल्क सब कंटेनर्स में उसी जगह पर वो सेट हो जाएगा. Now next what will happen here? Then on pouring the liquids from one container to another, the liquids can easily flow. They have the flowing quality, so they can easily flow. So these are all some characteristics of liquids. We can see that they have definite volume and they can flow easily. Okay. So now when we talk about liquids, what we see, देखो एनिमल्स प्लांट्स बहुत सारी चीज़ें वाटर में रहती है, तो उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए वाटर में, या तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. तो यहाँ के हम लोग क्या देखते हैं, नाउ वी फाइंड दैट द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर. These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic plants and animals. जो पानी में एनिमल्स रहते हैं, जो प्लांट्स रहते हैं, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में से पानी के अंदर डिफ्यूज हो जाती है. उसकी वजह से ये एनिमल्स और प्लांट्स इजीली अपना रेस्पिरेशन कर सकते हैं, अपना जो भी काम करना है, लाइक photosynthesis and all that can be done by the aquatic plants. So what we can find over here, what is the conclusion to this? Solids, liquids and gases can diffuse in liquids. The rate of diffusion of liquids is higher than that of solids. Now we will go to the gaseous state. What we find in the gaseous state over here? गैशियस स्टेट में हम लोग ने क्या देखा है, आपने देखा होगा बहुत बार, जो बलून फुलाने वाला है वो क्या करता है, बलून को एक सिलेंडर में से गैस निकाल के बलून फुलाता रहता है. ओके, और उससे सारे बलून्स फूलते रहते हैं. एंड लाइक दिस इज एबल टू, तो ये गैस सिलेंडर के अंदर है. ये कैसी गैस है, यहाँ पर गैस कंप्रेस करके सिलेंडर में डाली गई है. वी हैव एन एक्टिविटी फॉर गैशियस स्टेट. टेक 300 ml syringes and close the nozzles by rubber corks. देखो डायग्राम में syringe. Remove the pistons from all the syringes. Leaving one syringe untouched, fill water in the second and pieces of chalk in the third. Insert the pistons back into the syringes. You may apply some Vaseline on the pistons before inserting them into the syringes for the smooth movement. Now try to compress the content by pushing this piston in each syringe. What do you observe? In which case was the piston easily pushed in? What do you infer from your observation? Already we learned that कि जब हम लोग खाना बन रहा है किचन में तो हमको उसकी स्मेल बहुत दूर दूर तक आ जाती है. इसका मतलब क्या हुआ, कैसे आती है वो स्मेल? ड्यू टू डिफ्यूजन. हम लोग ने पहले भी पढ़ लिया है. सो लेट अस फाइंड आउट. ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स, they show the property of diffusing very fast into other gases. So we can say in the gaseous states the particles move about randomly at high speed. Okay. Now we come to our next topic. Can matter change its state? क्या matter change its state कर सकता है अपनी statement solid से liquid, liquid से gas, क्या change कर सकता है? We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter. First one, solid as ice. Second, liquid as the familiar water. And third, gas as water vapor. What happens inside the matter during this change of state? What happens to the particles of matter during the change of state? How does the state change take place? So हम लोग को इन सब चीज़ के आंसर्स चाहिए. अब ये जो क्वेश्चंस हैं, इन सब आंसर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? Let us have an activity again. We have in this activity what we are going to see, effect of change of temperature. That's what we are going to see in this activity. तो चलो activity की तरफ. What is the activity? वो क्या करना है इसमें? Now take about 150 gram of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice as shown in the figure. Okay, देखो फिगर सब लोग अपनी बुक में है. अब हम लोग इस एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक मेल्टिंग की और दूसरा है बॉइलिंग की. सो लेट अस कम टू द फर्स्ट पार्ट हियर. ओके, अब क्या करेंगे? स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम. धीरे से हम लोग बीकर को बहुत ही छोटी सी फ्लेम में हीट करेंगे. धीरे धीरे क्या देखेंगे हम लोग? आइस मेल्ट होने लगेगी. जब आइस मेल्ट हो रही है तो हम लोग को क्या नोटिस करना है? हम लोग को टेम्परेचर देखना है. थर्मोमीटर में कौन सा टेम्परेचर दिख रहा है? नोट the temperature when all the ice has converted into water. Record your observation for this conversion of solid to liquid state.
तो हम लोग ने आइस को मेल्ट किया और मेल्ट करते करते हम लोग बार बार टेम्परेचर देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाए हमारी नज़र थर्मामीटर के ऊपर ही है। अब हमने क्या देखा, उधर क्या ऑब्जर्व किया, द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एट 0 डिग्रीज सेंटीग्रेड when the temperature increases slowly, the entire ice melts and the water is formed in the beaker. Naturally, जब आइस मेल्ट होगी और पूरा पानी में बदल जाएगी तो जो टेम्परेचर पे आइस मेल्ट हो that is called as the melting point. Now what is this? On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increase. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, पार्टिकल्स का वो बहुत जोर से वाइब्रेट करने लगेंगे, ग्रेट स्पीड से वाइब्रेट करने लगेंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स leave their fixed position and start moving more freely. A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid. The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is known as its melting point. और melting point of ice क्या है? The melting point of ice is 273.16 Kelvin. So we can say over here the process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. When a solid melts, the temperature remains the same. जब solid melt हो रही, जब मैं आपको पहले भी बताया था, जब solid melts, जब तक आइस पूरी मेल्ट होकर लिक्विड में नहीं बदल जाएगी तब तक टेम्परेचर ऑफ दैट water and ice together will be at the same temperature, that is 0 degrees Celsius. So what we are observing from here, what we observe, this जो heat energy मिल रही है आइस को मेल्ट होने के लिए, एब्जॉर्ब तो हो रहा है, हीट कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब हो रहा है। जो बाहर का एनवायरनमेंट है एटमॉस्फेयर से, उसमें से वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होके सारी, और वो फ्लेम, छोटी सी फ्लेम जो हमने रखी है उसकी वजह से भी वो सारी आइस मेल्ट होके वाटर बन जा रही है। पर क्या हम लोग देख रहे हैं, थर्मामीटर पर जो टेम्परेचर है वो चेंज ही नहीं हो रहा। मेल्टिंग तो हो गया पूरा, जब तक लास्ट पीस ऑफ आइस मेल्ट हो रहा है तब तक वो वही टेम्परेचर दिखा रहा है। इसका मतलब जो भी हीट उसने एब्जॉर्ब करी वो एक हिडन टाइप ऑफ हीट थी। तो इस तरह के हीट जो हिडन है और जो टेम्परेचर में थर्मोमीटर में नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, दिस टाइप ऑफ हीट इज नोन एज लैटेंट हीट। ओके, the word latent means hidden. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. This is the meaning of the latent heat. Okay, now we come to part 2 of the same activity. अब part 2 में हम लोग क्या करेंगे? Now ऑलरेडी हमारी आइस मेल्ट हो चुकी है, अब हमें क्या करना है? Now put a glass rod in a beaker and heat while stirring till all the water starts boiling. तो जो आइस से पानी बदल चुका है अब उसको हम लोग हीट करने लगेंगे, बॉईल करने लगेंगे, और उसके अंदर वो थर्मोमीटर ऐसे कैसे रखेंगे अंदर। फिर हम लोग थर्मोमीटर को नज़र रखेंगे कि जब वो बॉईल हो रहा है तब क्या हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है टेम्परेचर में। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड. Record your observations for the conversion of water in the liquid state to the gaseous state. तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना जो बीकर है उसको हीट को हाई करके उसको बॉईल करने लगेंगे वाटर को। अब हम लोग देखते हैं पानी बहुत ज़ोर से बॉईल हो रहा है, बहुत सारा पानी वाटर वेपर में बदल के उड़ जा रहा है। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं टेम्परेचर जब हम देखते हैं तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, वाटर इज हीटेड कंटिन्यूसली एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड चेंजिंग इनटू गैसियस स्टेट. ऑन फर्दर हीटिंग for few more minutes the temperature remains the same but water boils and gets converted into steam. तो हम लोग क्या देखते हैं, पानी बॉईल हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, पर टेम्परेचर को क्या हो रहा है थर्मोमीटर में, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स हो गया है। पानी आधा वेपर हो चुका है, वेपराइज हो चुका है, तो भी उसमें नो चेंज कैन बी सीन ऑन द थर्मोमीटर. तो इससे हमें क्या पता चलता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर और गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट. उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. तो हम क्या बता सकते हैं, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर. जो पार्टिकल्स है वाटर के उसमें थोड़ा सा फोर्स है उसमें, पर अब हीट एनर्जी हम लोग सप्लाई करें तो वो फोर्सेस एक दूसरे से हट जा रहे हैं. एट अ सर्टेन टेम्परेचर a point is reached when the particles have enough energy to break free
from the forces of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. तो इसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज 100 डिग्री सेल्सियस. ना हम लोग देखते हैं कि जो स्टीम बन जा रहा है, जो पार्टिकल स्टीम बन रहे हैं और उड़ जा रहे हैं, वाटर वेपर बन के उड़ जा रहे हैं बॉइलिंग के टाइम. ओके, so what we observe in them, the particles in steam, that is water vapor, at 373 Kelvin, that is 100 degrees Celsius, have more energy than water at the same temperature. तो स्टीम में इतना एनर्जी है. बहुत पहले के ज़माने में स्टीम इंजन होती थी, तो स्टीम से पूरा रेलवे इंजन पूरे रेलवे कैरियजेस को पुश कर सकती थी. इतनी एनर्जी है उसके अंदर, स्टीम के अंदर. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग उसको बॉईल करे जा रहे हैं, बट टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग. तो ये हिडन हीट जो है, दैट इज नोन एज द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. नाउ वी गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. इसमें हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. नाउ व्हाट इज सब्लिमेशन, व्हाट इज मीनिंग? We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. But there are some that change directly from solid to gaseous state and vice versa without changing into liquid state. तो कोई मैटर ऐसा होता है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और गैशियस से वापस सॉलिड में. उसको बीच का जो स्टेट है लिक्विड स्टेट वो नहीं दिखाता. इट डज नॉट अंडरगो लिक्विड स्टेट. इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी लेते हैं, एक्टिविटी 1.13. इसमें हम लोग को क्या करना है, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश, पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश. तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड लेंगे. कैम्फर माने क्या, कपूर, जो हम लोग पूजा में यूज करते हैं. ओके, तो वो हम लोग लेंगे, या तो अमोनियम क्लोराइड लेंगे, उसको थोड़ा सा क्रश करके चाइना डिश में रख देंगे और उसके ऊपर एक फनल, जैसे आप फिगर में देख सकते हो, एक फनल उसके ऊपर इन्वर्ट करके लगा देंगे. अब फनल का ऊपर का पार्ट आपने देखा है खुला होता है, तो उसको हम लोग एक कॉटन प्लग से उसको बंद कर देंगे और उसके बाद धीरे से इस पूरी जो apparatus है उसको हीट करेंगे. हीट करने से हम लोग को क्या देखते हैं इसमें, what we found, the observation on the stem of the funnel and near the cotton plug, solidified ammonium chloride is collected on heating the china dish. The solid ammonium chloride did not enter the phase of liquid. It did not melt, but fumes, vapors on heating the china dish containing ammonium chloride were collected on the stem of the funnel as solidified ammonium chloride again. तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि जब हमने हीट किया तो solidified ammonium chloride जो था वो बिना लिक्विड स्टेट अंडरगो करते हुए गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया. और वो कहाँ कन्वर्ट होके कहाँ पर चिपक गया, जो फनल का ऊपर का पार्ट है वो अभी भी ठंडा है, वो अभी हीट नहीं हुआ है. तो वहाँ पर जो कूलर पार्ट्स है उसके ऊपर वापस अमोनियम क्लोराइड गैस बनकर वापस अमोनियम क्लोराइड की तरह वहाँ पर चिपक जाएगा, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वहाँ पर कॉटन प्लग लगाया हमने फनल में. सो इट कैनॉट गो आउटसाइड. सो ऐसा स्टेट, सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम हियर, a solid on heating changes into a gas without changing to liquid state. This process is called as sublimation. Okay, so this is about sublimation. Now let us go to the next topic, effect of change of pressure. तो अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करें किसी चीज पर तो क्या इफेक्ट, क्या चेंजेस हम लोग देख सकते हैं. ओके, so we have already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles. हमने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल्स जैसे सॉलिड में बहुत ही कम इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं, लिक्विड में थोड़े ज़्यादा हैं और गैसेस में बहुत ज़्यादा हैं. सो व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर. अगर हम लोग एक गैस ऑलरेडी है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट गैस कैन बी कंप्रेस द मोस्ट. अब हम लोग 3 सिलेंडर ले रहे हैं, ओके, और उसको हम लोग कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं गैस को कंप्रेस करने से क्या होता है. So, will the particles come closer? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter?
क्या प्रेशर से मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है? लेट अस फाइंड आउट. अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस. अगर हम लोग गैस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें और टेम्परेचर कम कर दें तो गैस लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है. हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड कभी सुना है उसके बारे में? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. हाई प्रेशर में हम लोग स्टोर करते हैं तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. देखो पिक्चर में dry ice, बहुत सारी जगह पर dry ice यूज होते हैं. कभी कभी सॉन्ग्स जो मूवीज में होते हैं उसमें बहुत सारा स्मोक आता रहता है. वो कैसे आता है? ड्राई आइस रखा जाता है सब जगह कंटेनर्स में, तो उससे डायरेक्टली आइस गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होकर क्लाउड्स जैसा दिखता है. तो वो दैट इज how we can say without undergoing liquid state it changes into gaseous state. So we can say that pressure and temperature determine the state of a substance whether it will be solid, liquid or gas. अब ये देखो इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 states of matter. ओके, हम लोग ने देख लिया है दिस इंटर कन्वर्जन. सॉलिड को जब हम लोग उसको हीट करेंगे तो क्या होगा? उसको इट विल चेंज टू लिक्विड. और लिक्विड को जब और हम लोग हीट करेंगे तब वो गैस में चेंज होगा. पर गैस को जब हम कंडेंस करेंगे, जब गैस को कंडेंस करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा. और लिक्विड को जब हम और भी फ्रीज करेंगे तब वो सॉलिड में चेंज होगा. सो दिस इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इवेपोरेशन. सब लोग को इवेपोरेशन के बारे में पता है ना? जब हमने देखा है जब हम एक वेसल में पानी हीट करते हैं तो बहुत गर्म हो जाता है, सारा पानी धीरे धीरे एवेपोरेट होने लगता है. वाटर वेपर बनकर वो धीरे धीरे वेसल में से फ्लाई आउट करने लगता है. पर क्या उसी को इवेपोरेशन कहते हैं? कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कपड़े हम लोग बाहर लटकाते हैं. कपड़े धोने के बाद क्या करते हैं मम्मी? तो शी पुट्स द क्लोथ्स आउटसाइड, जो वायर पे लटकाती हैं. तो क्या होता है? क्लोथ्स धीरे धीरे ड्राई हो जाते हैं. तो क्या इवेपोरेशन हुआ उधर? क्या बॉयल हुए कपड़े के ऊपर पानी? नो, बिना बॉयल हुए भी वो इवेपोरेट हो जा रहा है. तो वेट क्लोथ्स आर एबल टू ड्राई अप. ओके, पानी भी अगर हम लोग एक डिश में रखकर बाहर रख दें गर्म धूप में तो धीरे धीरे वो भी इवेपोरेट हो जाता है. इससे हम लोग को एक बात पता चलती है दैट वाटर कैन इवेपोरेट एट एवरी टेम्परेचर. कोई भी टेम्परेचर हो, ठंडी का दिन हो तो भी कपड़े सूख जाते हैं, गर्मी के दिन हो तो भी सूख जाते हैं, हवा चल रही है तो भी कपड़े सूख जाते हैं, और जब रेनी डे हो तब भी हम लोग कपड़े लटकाते हैं तो वो सूख जाते हैं. इसका मतलब इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे हो सकता है. सो दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं. सो लेट अस रीड अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. You must have observed that the rate of evaporation increases with increase in surface area. First वाला factor है ये. तो इसका मतलब क्या है? We know that the evaporation is a surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation will increase. तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? एग्जाम्पल, अगर कपड़े हम लोग ड्राई करते हैं बाहर धूप में और अगर हम अच्छी से स्प्रेड करके ड्राई करते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. तो जब टेम्परेचर जिस दिन गर्मी ज़्यादा हो तो जल्दी सूख जाएंगे कपड़े, और जिस दिन नहीं होगी तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतनी जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा. जैसे बहुत सारे गर्मी में बहुत सारे रिवर्स लेक्स में से पानी बहुत ज़्यादा इवेपोरेट हो जाता है. द नेक्स्ट फैक्टर affecting evaporation is humidity. Humidity is the amount of water vapor present in air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. अगर amount of water already high है, जैसे कि rainy season में जो amount of water vapor ज़्यादा होता है in the air, तो evaporation का rate decrease हो जाता है. Okay, next part is an increase in wind speed. हमने देखा है जब बहुत ज़्यादा विंड हो उस दिन हम लोग अगर कपड़े सुखाएं तो वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं. इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन. द क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड. द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स. तो इंक्रीज इन विंड स्पीड विल इंक्रीज द इवेपोरेशन. अब हम लोग कम टू द नेक्स्ट टॉपिक,
हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? हम लोग ने देखा है कि जब हम बहुत सारा खेल के आते हैं फ्रॉम गेम्स पीरियड, तो व्हेन वी प्ले एंड कम बैक टू द क्लासरूम, तो हम लोग पूरे स्वेट से कवर्ड होते हैं. जैसे ही हम पंखा चलाते हैं एक बहुत कूलिंग इफेक्ट आती है. So why that cooling effect is taking place? Because the water vapor, water which is formed in our body is getting evaporated quickly. इसलिए वो एक cooling effect produce करता है. So we can say that जब आप सैनिटाइजर यूज करते हैं तो क्या होता है, अपने हैंड्स पे सैनिटाइजर रब किया, 2 मिनट के बाद वो सैनिटाइजर फटाफट इवेपोरेट होने लगता है. जब वो इवेपोरेट होता है तो एकदम कूलिंग इफेक्ट आती है. सो कूलिंग इफेक्ट क्यों आ रही है? क्योंकि इवेपोरेशन जब जल्दी जल्दी होता है तो एक कूलिंग इफेक्ट हमारी बॉडी पर वो कॉज करता है. सो वी कैन से हॉट समर डे होता है तो सब लोग क्या करते हैं, अपने टेरेस पे और अपने घर के आसपास सब पानी छिड़कते हैं. पानी क्यों स्प्रिंकल करते हैं वहाँ पर? क्योंकि जब वो पानी इवेपोरेट होता है तो एक कूल फीलिंग सबके घर में आ जाती है. सो दैट इज वाई वी कैन से इवेपोरेशन कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट. ओके, नाउ कभी कभी हम लोग गर्ल्स यूजुअली जब नेल पेंट यूज करते हैं और उसके बाद एसीटोन केमिकल है जो नेल पेंट रिमूवर कहते हैं उसको, जब वो लगा के नेल पेंट हम लोग निकालते हैं उससे, तो अचानक से हम लोग देखते हैं कि सारे हमारे नेल्स में एक कूलिंग इफेक्ट जैसी लगती है. क्यों? क्योंकि वो एसीटोन जब इवेपोरेट होता है तो नेल्स के आसपास एकदम ठंडा सा लगता है, क्योंकि एसीटोन बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है. अगर एसीटोन की बॉटल खोल के रख दें तो फटाफट सारा नेल जो रिमूवर है, नेल पेंट रिमूवर, वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट विच वी हैव इज, हम लोग सब कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. देखा ना, समर में कोई भी पॉलिस्टर या नायलन या सिल्क ऐसी सब क्लोथ्स हम लोग नहीं पहनना चाहते क्योंकि बहुत गर्मी लगती है उन क्लोथ्स में. और कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं तो वहाँ पर एकदम हम लोग को अच्छा सा फीलिंग आता है, कूलनेस का फीलिंग आता है. क्यों? क्योंकि कॉटन इज सच ए फाइबर दैट कैन एब्जॉर्ब वाटर. जो हमारा स्वेट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही वो स्वेट एब्जॉर्ब करता है तब क्या होता है, वो स्वेट एब्जॉर्ब स्वेट जो बाहर का जो एयर है उसके कांटेक्ट में आ जाता है और उसकी वजह से वो जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है. इवेपोरेट होने की वजह से हमारी बॉडी में एक कूलनेस की फीलिंग आती है. सो वी कैन से cotton, being a good absorber of water, help in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation, causing a cool effect on our body. Now we come to the last topic. Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cubes? क्यों? अगर हम लोग कोई गेस्ट आता है तो हम लोग उसके लिए कुछ ना कुछ सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं, तो उसमें हम लोग आइस डालते हैं. फिर जब हम लोग देते हैं और वो गेस्ट थोड़ी देर के बाद पीते हैं तो क्या देखते हैं, ग्लास के बाहर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आ गए. हमने जब नींबू पानी दिया तब तो ग्लास एकदम साफ था, देयर वाज नो वाटर. अचानक से वाटर कहाँ से आया? So what, from where the water has come? The water vapor present in air, when it comes in contact with the cold glass of water, it loses energy and gets converted into liquid state, which we see as water droplets. So that is about the lesson today.